বুঝছেন যে আমরা দ্বাদশ মহাজন রয়েছি, হ্যাঁ, এই দ্বাদশ মহাজন যে বিধিটা দিয়েছে সেটা আমাদের পালন করতে হবে। কি করতে হবে? আমাদের দাবি মানতে হবে, পালন করতে হবে। এটা একটি বিধি নেই। হ্যাঁ, আমি ওই কথা একটু বেশি করে জোর করে বলি, লোকে একটু হাসে। কি বলে রাজনেতারা বলেন না, আমাদের দাবি মানতে হবে। ওই জন্য আপনাদের কাছে জোর করে বলে দিই আর কি। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে শাস্ত্রের মধ্যে বলা আছে বিধি নেই। নিয়মটাকে আপনাকে পালন করতে হবে। পালন না করলে কি হবে না, সেখানে অপরাধ হয়ে যাবে, পাপ হয়ে যাবে, অথবা ফল পাওয়া যাবে না। যদি বিধিটাকে আমরা পালন না করি তাহলে ফল প্রাপ্তি হবে। যেমন আপনি একাদশী বিধিবত করলেন কিন্তু পালন ঠিক মতো করলেন না, সময় মতো করলেন না, তাহলে আপনারা সারাদিন এত উপবাস থেকেও বা নির্জলা ব্রত করেও তাহলে একাদশীর যে ফলটা সেটা পাওয়া গেল। সারাদিন কাজ করলেন আর পয়সা কিছু পাওয়া গেল না, তাহলে কাজ করে বেকার গেলেন কি? হ্যাঁ, আমি কাজ করছি কি জানি ফল পাওয়ার জন্য, ফলের আশাই তো আমরা সকলেই করি। কে ফল চান না বলুন? আচ্ছা, ফল আমরা সকলে চাই। তবু আপনি এখানে আসুন, সামনে এই যে প্রভু, হ্যাঁ মায়ের বসে আপনি এখানে আসুন, কথা শুনুন সব। হ্যাঁ, ভালো। কি নাম আপনার? সামনে আরে সামনে আসুন, আমি বাদ ভালো করতে। হ্যাঁ, কি বললাম না, আমরা যে কার্য করি সেই কার্য করার উদ্দেশ্য হচ্ছে ফল প্রাপ্তি করা। হ্যাঁ, বীজ লাগালাম কিসের জন্য? ফলের জন্য। হ্যাঁ, ধান চাষ করলাম, ধান জমিতে আমরা লাগালাম, লাগাই তো। হ্যাঁ, কিন্তু ভাদ্র মাসে কি হইবে? ডুবে গেল। আশ্বিন মাসে ডুবে গেল, বা আশ্বিনের ঝড়ে সব ডুবে গেল। অথবা পৌষ মাসে এমন শিলাবৃষ্টি হলো আর সব ধানগুলো কি হলো? তাহলে আমার সবটা ব্যর্থ গেল। কেন আমি বলছি না, যদি এত পরিশ্রম করে নির্জলা একাদশী ব্রত করে যদি আমরা সময় মতো যদি পালন না করি, हरि बोल नाउ जो के हरे कृष्ण। ব্রতের কথা বলা আছে সেগুলো বৃদ্ধাটাকে ত্যাগ করে করে শুদ্ধাটাকে করতে হয়। আবার শুদ্ধা করেও আবার তার পরের দিন যে ব্রতের মানে পালনের কথা বলা আছে সেটাকেও জানতে হবে, নাহলে ফল কিছু পাওয়া যাবে না। আবার যদি বৃদ্ধাটা যদি করেন তখন উল্টা ফল আবার হয়। वृद्धा एकादशी यदि हम करेंगे तो उसका उल्टा फल प्राप्त होगा। यदि एकादशी दसवीं से संयोग हो जाएगा तो वो एकादशी का फल नहीं मिलेगा, उसका उल्टा फल हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर मसा है, जिस तरह से इंजेक्शन देते हैं ना उस तरह से लग रहा है। एकादशी अगर दसवीं में मिक्स हो गया, दसवीं में दसवीं में एकादशी करेंगे तो उसका फल नहीं प्राप्त होगा। फल नहीं प्राप्त करना ये अलग बात है, उसका उल्टा फल प्राप्त होगा। फल नहीं पाए वो तो ठीक है, लेकिन उल्टा फल प्राप्त हो जाएगा। रामायण में एक कथा है, हरि भक्ति विलास में भी है। किसी एक समय देवी सीता वशिष्ठ ऋषि के आश्रम, संभवतः वशिष्ठ ऋषि ही नाम था, ऋषि का नाम ठीक ठीक पता नहीं, उन्होंने उनसे जानने की इच्छा की हमारे जीवन में इतना कष्ट क्यों हुआ। वो कह रही हम तो जनक महाराज की पुत्री हैं, नंदिनी हैं, और हमारा विवाह रामचंद्र के साथ, दशरथ महाराजा दशरथ के पुत्र रामचंद्र के साथ हमारा विवाह हुआ, हमारे जीवन में इतना कष्ट क्यों हो रहा है और मुझे वनवास जाना पड़ा। राम लक्ष्मण और देवी सीता को वनवास जाना पड़ा और 13 साल तक जंगल में वन में घूमना पड़ा।
জনক নন্দিনী শ্রীমতী जनक नंदिनी जनक नंदिनी देवी सीता সীতা দেবী কষ্ট করেছেন কিনা কষ্ট जनक नंदिनी देवी सीता को कितना कष्ट करना पड़ा। আবার এক বছর বাকি ছিল, और एक वर्ष बाकी था 14 वर्ष पूर्ण होने में, उस समय रावण ने सीता का हरण कर लिया। অসভ্যতার মধ্যে কত কষ্ট। এই জন্য সীতা দেবী সেটা জিজ্ঞাসা করছেন सीता देवी যে আমি পুরোজনে কি করব। वशिष्ठ ऋषि से जानना चाहती हैं कि हमने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा कर्म किया। জন্ম করণ যে দিব্যং দুপতি তত্ত্ব वैसे तो इनका जन्म कर्म दिव्य है, বাস্তব রূপে वास्तव में তথাপি इनका कोई कर्म नहीं है, लेकिन लोग शिक्षा देने के लिए देवी सीता प्रश्न कर रही हैं गुरु वशिष्ठ से। যে আমার কর্মের কি গতি, কেন আমি কষ্ট পাচ্ছি, কষ্ট हमें इतना कष्ट क्यों मिल रहा है। বললেন तब ऋषि ने बोला, এক সময় ভুল করে বিদ্যা একাদশীটা পালন করেছি। तुमने एक समय गलती से वृद्धा एकादशी का पालन किया था, 10वीं मिक्स एकादशी का पालन किया था, তোমারই কষ্ট এসেছে। इसलिए आपको ऐसा कष्ट मिल रहा है। देखिए, আমি বলছি না, শাস্ত্র हम बोल नहीं रहे हैं, शास्त्रों में बोला गया है একাদশী পালন করতে হবে, কারণ কখনো एकादशी का पालन একাদশী পালন करिए, लेकिन वृद्धा एकादशी पालन करना नहीं। পালন করার পর আপনাদের দেখে নিতে হবে পঞ্জিকার মধ্যে যে সময়টা কি রয়েছে। पंजिका में देखिए जिस समय पारण का समय है वो निश्चित ही ध्यान रखिए उसका। এই জন্য শ্রীমদ্ ভাগবতে इसलिए श्रीमद् भागवतम में अम्बरीश महाराज যে কথাটা রয়েছে সেই জন্যই রয়েছে, অন্য কোনো और दुर्वासा ऋषि का कथा है। কি রয়েছে কথাটা क्या है कथा? अम्बरीश महाराज যখন একাদশী अम्बरीश महाराज द्वादशी युक्त एकादशी त्रयोदशी थे, পালন করেছিলেন, একাদশী পালন করেছিলেন, উনি হচ্ছে দ্বাদশী ব্রত পালন করেছিলেন। द्वादशी व्रत पालन किया उन्होंने महाराजा अम्बरीश ने। और उस समय जो पारण का समय था बहुत ही अल्प, बहुत ही कम था। अम्बरीश महाराज ने विष्णु चरणामृत लिया और एकादशी के पारण के नियम का पालन किया। यहाँ पर बोल रहे हैं कि पारण की जो विधि है ये बतलाया महाराजा अम्बरीश के माध्यम से। शिव चतुर्दशी है कल। शिव चतुर्दशी मतलब क्या, क्यों पालन करें शिव चतुर्दशी, वैष्णव क्यों काल पालन करें शिव एकादशी। किसी किसी शास्त्रों में बताया गया कि उस दिन शिव जी प्रकट हुए थे। शिव जी, यद्यपि शिव जी नित्य हैं, मृत्युंजय हैं, शिव का कभी मृत्यु हो किसी शास्त्रों में बोला नहीं। शिव जी की मृत्यु होती नहीं, पार्वती शरीर छोड़ती हैं। श्रीमद् भागवतम में सती दाह की कथा आती है, लेकिन शिव जी के देह त्याग की कथा नहीं है। और यदि कहीं मिल गया तो किसी ने मन गढ़ंत लिखा होगा। आजकल इसका अभाव नहीं है। अपने मन से श्लोक रचना करो और लिख दो। शिव जी को बोला गया है मृत्युंजय। मृत्युंजय को ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम मृत्युर्मोक्ष अमृतम। मृत्युंजय मंत्र, महामृत्युंजय, मृत्युंजय महामंत्र। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वरुकमेव बंधनम मृत्युर्मोक्षम अमृतम। बहुत सुंदर मंत्र है, बहुत ही पावरफुल मंत्र है। इस मंत्र को यदि जप किया जाए तो समस्त प्रकार के रोग और व्याधि दूर हो जाएंगे। करें 100 बार घी की आहुति देता है, कोई 1000 बार करे तो वो भी और अच्छा है। किंतु हमारे वैष्णव मत में इसकी आवश्यकता नहीं है। अनेक लोग करते हैं, कभी हम लोग 11 बार करते हैं, कभी 108 बार करते हैं।
क्योंकि ये मंत्र बड़ा ही पावरफुल है। না শিবজি হচ্ছেন বৈষ্ণবের शिव মধ্যে जी শ্রেষ্ঠ वैष्णव में सबसे श्रेष्ठ, वैष्णव नाम यथा शंभु। শ্রেষ্ঠতম शिव जी बड़े ही श्रेष्ठ वैष्णव हैं। তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলেন কি श्रेष्ठ कौन है वैष्णव में? शिव जी। এই শিব যে নামটা ওই সাধারণ না, শিব শব্দের অনেক অর্থ আছে। शिव शब्द का अनेक अर्थ है। सत्यम शिवम सुंदरम। শিবম সুন্দরম। সত্য বস্তুটা কি? सत्य वस्तु क्या? जो सुंदर है। যত সুন্দর রয়েছে সবচেয়ে সুন্দর কি জিনিস বলুন তো? सबसे सुंदर क्या? ভগবানের নাম। भगवान का नाम। ভগবানের নামের সঙ্গে भगवान के नाम के साथ किसी और नाम की तुलना नहीं की जा सकती। না কনফিউজ হয়ে যায়। अनेक बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ये শিব কথাটা যে শাস্ত্রের মধ্যে শিব শব্দের অর্থ হচ্ছে शास्त्रों में शिव की कथा बोले, शिव शब्द का अर्थ है पवित्र, निर्मल। আর শিব শব্দের অর্থ হচ্ছে शिव शब्द का अर्थ है सत्य। सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य वस्तु, সত্য স্বরূপ কে? স্বয়ং ভগবান। सत्य स्वरूप क्या? स्वयं भगवान। सत्यम परम धीमहि, ভাগবতের আছে भागवतम में आया है। কি বলেছে? सत्यम परम धीमहि। এই সত্য বস্তুটা কে? सत्य वस्तु क्या है? स्वयं भगवान श्री कृष्ण। তিনি পরতত্ত্ব। ये परतत्व, परापर तत्व। सत्यम परम सत्यम परम धीमहि। सत्य वस्तु परतत्व वस्तु सत्य वस्तु पर स्वयं भगवान तत्व के वस्तु আমি ধ্যান করি। स्वयं भगवान को हम लोग ध्यान करें। সেটা যে বাস্তব রূপে তার নাম, ভগবানের নাম হলো वास्तव में भगवान का नाम शिव। शिव मतलब सुंदर। আমাদের উপনিষদের মধ্যে বা পুরাণের মধ্যে हमारे उपनिषदों में, पुराणे में अनेक कथाएं बतलाई गई हैं। যত जब নাম রয়েছে না, রাধা রানী সমস্ত দেবীগণকে তার নাম দিয়ে দিয়েছে। राधा रानी समस्त देवियों का नाम दे देती हैं और स्वयं भगवान श्री कृष्ण কি করেছেন? দেবতাগণকে দিয়ে দিয়েছে। नाम देवतागण को दे दिए। বুঝতে পারছেন? এই জন্য লোকে বুঝতে পারে না। Confuse इसको হয়ে लोग যায়। बूझते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। আলাদা দেবতা ভগবান, शिव अलग देवता, কৃষ্ণ আলাদা দেবতা। कृष्ण अलग আবার देवता। এগুলো কি করে হয়? তত্ত্ব সিদ্ধান্ত রয়েছে তার মধ্যে। इसके बीच में तत्व सिद्धांत है। শিব শব্দের অর্থ বললাম কি? কি বললাম? शिव शब्द का अर्थ क्या बोला? পরম পবিত্র, परम पवित्र, मंगल, সত্য স্বরূপ। सत्य स्वरूप। এই সত্য স্বরূপকে यही सत्य स्वरूप कौन? एकमात्र श्री भगवान। दो सत्य है। লৌকিক সত্য, एक है लौकिक सत्य, পারমার্থিক एक है परमार्थिक सत्य। লৌকিক सत्यটা কি? लौकिक सत्य क्या? চোখে যারা দেখা যাচ্ছে, जो हम चक्षु के द्वारा देख रहे हैं, जो अपनी आंखों के द्वारा देख रहे हैं, ये है लौकिक सत्य। আমার মাকে আমি বা পিতাকে আমি স্বীকার করব কি করব না? हमारी माता को, हमारे पिता को स्वीकार करेंगे नहीं करेंगे? हमारी माता को और पिता को स्वीकार करेंगे ही करेंगे। হলো না ये क्या है? তাৎকালিক সত্য। तात्कालिक सत्य। এই গাছটা কি? हमने यहाँ पर घास देखा, ये क्या है? सत्य है। তাৎকালিক সত্য। তাৎকালিক মানে इसे बोलते ওই हैं সময়টা, तात्कालिक सत्य। 100 বছর পরে এই গাছটা থাকবে না, মরে उसी যাবে। समय के लिए वो सत्य है। আপনাকে আমি দেখছি, आपको मैं देख रहा हूँ, এটা সত্য কি? ये सत्य है कि मिथ्या है? ये सत्य কিন্তু है। এই সত্যটা কতক্ষণ? না ये सत्य कितने समय के लिए? एक विशेष समय तक के लिए ये सत्य है। সময় পর্যন্ত সত্য মানব। এই জন্য শাস্ত্রে इसलिए शास्त्रों में बोला गया है, दो प्रकार का सत्य है। एक है तात्कालिक सत्य, আর একটা হচ্ছে পরমার্থ। एक है परमार्थिक सत्य। অদ্বৈতবাদী কি বলেন? সব মিথ্যা। अद्वैतवादी क्या बोलते हैं? सब मिथ्या, ब्रह्म सत्य, ব্রহ্মই পূর্ণ করে। এই जगत সব मिथ्या। कह रहे हैं जगत में सब मिथ्या है। परम गुरु महाराज भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज इस युक्ति का खंडन करते हैं। বলছে জগৎ, बोलते हैं জগৎ যদি মিথ্যা, जगत यदि मिथ्या है তুমি কোথায় আছো? জগতে আছো। तो तुम कैसे आए? তুমি কি দেখছো? तुम क्या देख रहे हो? চোখে দ্বারা দেখছো, ওটা মিথ্যা। चक्षु के द्वारा जो देख रहे हो मिथ्या है। কি বলছো? মিথ্যা। क्या बोल रहे हैं? তুমি যেটা বলছো সেটা মিথ্যা কি না? तुम जो बोल रहे हो वो सब मिथ्या है। মহারাজ এগুলো যুক্তি हमारे परम गुरु महाराज इन सबको बड़ी युक्ति से बतलाते थे, परम गुरु महाराज আমাদের क्योंकि हमारे परम गुरु महाराज वैष्णव सिद्धांत में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? সত্য কথা বলা दो प्रकार की सत्य कथा है। एक तात्कालिक सत्य, তাৎকালিক
विशेष समय तक एक विशेष समय तक के लिए है। এই গাছটা কিছুদিন পরে নষ্ট হয়ে যায় কি জানেন কিন্তু ये এখন তো আমরা घास है, দেখছি कुछ समय के लिए नष्ट, कुछ समय के बाद नष्ट हो जाएगा, तो इसलिए ये तात्कालिक सत्य है, कुछ समय के लिए, एक समय की सीमा है। এই সত্যটাকে বলা হয় इसको बोला गया है तात्कालिक सत्य। और परम सत्य क्या है? भगवान ही परम सत्य हैं, সত্যং পরম इसलिए कहा गया सत्यम परम धीमहि। এর মধ্যে অর্থ রয়েছে গোস্বামীগণ অনেক गोस्वामियों ने इसके अनेक टीका टिप्पणी बतलाई है। 108 तो टीकाएं हैं। श्रीमद् भागवतम শ্লোকের মধ্যে অনেক श्लोक में अनेक टीका की कथा है। গোস্বামীগণ থেকে আরম্ভ করে অনেক বৈষ্ণবগণ তারা টিকা লিখেছে अनेक वैष्णवगण टीका लिखते हैं, এই জন্য বললাম দুইটা অর্থ হয় इसलिए बोला गया है एक तात्कालिक सत्य, एक परमार्थिक परमार्थिक सत्य, नित्य सत्य। এই জন্য সত্য স্বরূপকে इसलिए सत्य स्वरूप कौन? स्वयं श्री भगवान, স্বয়ং ভগবান स्वयं भगवान তিনি বলেছেন। निरंतर শিব सत्य তত্ত্বের हैं। কথা বলতে গিয়ে আবার আরেকটা কথা মনে করিয়ে দিই और যে এই যে শিব তত্ত্বের কথা বলা হয়েছে जो शिव तत्व की कथा बोली गई है, एक है जीव। পরে বললাম এই সুন্দর কথা अभी बोलेंगे। आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया। उन्होंने बोला कि शिव जी तात्कालिक सत्य हैं कि परम सत्य हैं? 100 जन्म यदि कह रहे हैं 100 जन्म तक कोई वर्णाश्रम धर्म का पालन करता है तो वो ब्रह्मा का पद प्राप्त करेगा। इसलिए शिव को बोलते हैं, इंद्र को और ब्रह्मा जी को बोलते हैं पदमात्र, पद माने पोजीशन। डिजिग्नेशन যেমন প্রধানমন্ত্রী मान लीजिए प्रधानमंत्री, प्रधान ব্যক্তি বিশেষ কি পদ বিশেষ पद विशेष। পদ বিশেষ আপনি প্রধানমন্ত্রী হতে পারেন কি নাম আপনার आपका क्या नाम है? हम मान लो प्रधानमंत्री हैं संजय भंडारी। সঞ্জয় ভান্ডারী সঞ্জয় संजय ভান্ডারী কি হলে संजय भंडारी मान लो प्रधानमंत्री हो गए। তারপরে 10 বছর কি 5 বছর পরে 10 वर्ष 5 वर्ष बने हैं, তখন আপনার जीते नहीं, তখন আপনাকে কি বলা হবে এক্স भंडारी, हाँ, एक्स प्राइम मिनिस्टर बोला जाए, তাই না पूर्व তাহলে प्रधानमंत्री। আপনি যে প্রধানমন্ত্রী হলেন ওটা আপনার अगर मान लो प्रधानमंत्री हैं तो ये नित्यता नहीं है। একটা হচ্ছে কি পদ বিশেষ प्रधानमंत्री एक पद विशेष है, পজিশন पोजीशन। এই জন্য ছাত্র যে ইন্দ্র इसलिए शास्त्रों में बोला गया है इंद्र ब्रह्मा शिव, ये क्या है? पद यानी उपाधि है, पोजीशन, दैट इज कॉल्ड पोजीशन। কোনো জীব যদি সাধন ভজন করে यदि कोई जीव साधन भजन करे 100 বছর 100 वर्ष तक वर्णाश्रम धर्म का पालन करे, বছর নয় यानी 100 जन्म, 100 वर्ष नहीं 100 जन्म পালন করে वर्णाश्रम धर्म का पालन करे। হ্যাঁ কি করতে হবে না বর্ণাশ্রম ধর্ম পালন করতে হবে वर्णाश्रम धर्म ठीक से पालन करे। ब्रह्मचारी, আমাদের চক্কর এসে যাবে गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी। বর্ণাশ্রম ধর্ম পালন করতে কত কষ্ট एक जन्म में वर्णाश्रम धर्म पालन करना कितना कष्ट है। 100 जन्म यदि कोई वर्णाश्रम धर्म पालन करे उसे ब्रह्मा का पद प्राप्त हो जाएगा। বুঝতে পারছেন समझ रहे हैं? বুঝতে পারছেন বুঝতে না পারলে आप लोग अगर नहीं समझ पाएंगे तो आप पुनः पूछ लेना। 100 বছর নয় 100 जन्म, বছর 100 100 जन्म, and birth 100 birth 100 जन्म केउ यदि वर्णाश्रम धर्म 100 जन्म कोई यदि वर्णाश्रम धर्म ठीक ठीक रूप में पालन करे वो क्या होगा? ब्रह्मा का पद प्राप्त कर लेगा। চতুর্মুখ ব্রহ্মা এটা কি সাধারণ ব্যাপার নাকি चतुर्मुख ब्रह्मा ये कोई साधारण नहीं है, চিন্তা করুন। কিন্তু लेकिन কখনো এইরূপ জীব পাওয়া যায় না তখন কি कभी- হয় না कभी স্বয়ং ভগবান जीव ऐसा তিনি कर नहीं সেই सकते। পদে অধিষ্ঠিত হন তখন तो তাকে कभी- কি कभी- ব্রহ্মা বলা হয় দুইটা ব্রহ্মার কথা বলা হয় একটা হচ্ছে दो ब्रह्मा की कथा बोली गई, एक बैराज ब्रह्मा, হিরণ্য एक हिरण्य गर्भ ब्रह्मा। বৈরাজ ব্রহ্মা এগুলো জানতে बैराज ब्रह्मा টেকনিক্যাল ওয়ার্ড टेक्निकल वर्ड से। বৈরাজ ব্রহ্মা কাকে বলে बैराज ब्रह्मा किसको बोलते हैं? কি ব্রহ্মা বললাম हिरण्य गर्भ ब्रह्मा, যে কল্পে जिस कल्प में এইরূপ শুদ্ধ জীব পাওয়া যায় না ऐसा शुद्ध जीव नहीं मिलता है कि जो 100 जन्म तक वर्णाश्रम धर्म का पालन कर रहा हो, ब्रह्म पद प्राप्त करे। কি করেন
तब स्वयं भगवान क्या करते हैं, उस ब्रह्मा पद को स्वयं भगवान स्वीकार कर लेते हैं प्रतिष्ठित होकर के, तो इस सृष्टि का कार्य आदि करते हैं। समझ रहे हैं? यदि कोई जीव 100 जन्म तक वर्णाश्रम धर्म का पालन कर लिया तो उसे भी ब्रह्मा का पद प्राप्त हो गया, सब कल्प में। लेकिन ऐसे जीव नहीं मिलते हैं। इसलिए 100 वर्ष तक ब्रह्मा का कार्यकाल होता है। 100 वर्ष से अधिक हो जाता है तो ब्रह्मा मुक्त हो जाते हैं, तो रिटायर हो जाता है। अगर इंद्र पद प्राप्त कर लिया, शास्त्रों में बोला गया है ब्रह्मा जी का पद है, शिव पद प्राप्त कर लिया। शिव पद प्राप्त करना एक कठिन, हर कल्प में होता नहीं है। तो स्वयं भगवान क्या करते हैं, निज का ही शिव के पद में अधिष्ठित हो जाते हैं और ये ध्वंस का कार्य करते हैं। शिव में भी 2 पद है, एक जीव कोटि शिव, एक भगवत कोटि जीव। ब्रह्मा 2, भगवत ईश्वर कोटि ब्रह्मा। जीव कोटि ब्रह्मा, ईश्वर कोटि ब्रह्मा। जीव कोटि ब्रह्मा, ईश्वर कोटि ब्रह्मा। जीव कोटि शिव, ईश्वर कोटि शिव। समझना, ध्वंस का कार्य सबसे अधिक कठिन है। सृष्टि का कार्य तो किया जा सकता है, लेकिन ध्वंस करना इतना आसान नहीं होता। एक घर आप बनाएं सुंदर रूप से, सहज में गवर्नमेंट उसको गिरा नहीं सकती। अगर कोई शनि मंदिर को तोड़ दे तो कितनी लड़ाई हो जाएगी। हनुमान जी का मंदिर, मुसलमान होते हैं, अरे बाबा गवर्नमेंट ने आदेश दिया डीएम को कि ये रास्ते में ये शनि मंदिर है, बुलडोजर लगा के इसको तोड़। जेसीबी लेके तोड़ दो। बोलेंगे ऐसा तो क्या कोरोना हो गया, तो सोचेंगे शनि मंदिर है, शनि हमारे ऊपर चढ़ जाएंगे तो हम क्या करेंगे, अपना प्राण बचाएगा नहीं बचाएगा। कथा में इसलिए बोल रहा हूँ कि जो ध्वंस का कार्य है बहुत ही सख्त है, इतना सहज नहीं है। ध्वंस का कार्य शिव जी को दिया गया है। ये शिव जी एक जीव कोटि शिव, एक ईश्वर कोटि जीव। 2 टाइप्स ऑफ जीवा, 2 टाइप्स ऑफ शिव। जो वर्णाश्रम धर्म का पालन करके जाते हैं उसे बोला जाता है जीव कोटि शिव, और जो ईश्वर कोटि हैं वो उसे बोला गया है सदा शिव। सबको बोला नहीं गया, जीव ही शिव, शिव ही जीव। व्याख्या में भूल हो जाता है, बोला तो सत्य ही है। समस्त शिव जीव नहीं है, समस्त शिव शिव नहीं, समस्त जीव शिव नहीं, समस्त शिव जीव नहीं, समस्त जीव शिव नहीं। इसलिए भगवान शिव के पद पर अधिष्ठित होके ध्वंस का कार्य करते हैं, उसे बोला गया है सदा शिव। और एक शिव की कथा बोली गई है कैलाश शिव, ये जीव तत्व शिव। जो ब्रह्मा बोले गए, इंद्र बोले गए, शिव बोले गए, ये है पद विशेष, पोजीशन। कौन जीव शिव है, कौन जीव शिव है ये हम जानते नहीं, लेकिन प्रत्येक कल्प में
ये पाया नहीं এরকম जाएगा। জীব পাওয়া যায় না ऐसा जीव प्राप्त नहीं होता ধ্বংসের কার্যকে कि जो ध्वंस के कार्य को कर पाए या स्वीकार कर पाए या शिव के पद पर अधिष्ठित हो पाए। ভগবান বিষ্ণু কি করে तो इसलिए स्वयं भगवान विष्णु क्या करते हैं, खुद ही उस पद को धारण कर लेते हैं। সেই শিবকে বলা হয় उसी शिव को बोला गया है সদাশিব। सदाशिव। জানেন সদাশিব হ্যাঁ কি বললাম মনে থাকবে কি থাকবে না? এগুলো মনে রাখতে হবে। হ্যাঁ নিরোগ লোক বলে জগা খুঁজি বলো হ্যাঁ জীব শিব শিব জীব জীব সেবা শিব সেবা শিব সেবা जीव सेवा शिव सेवा, সবগুলো শিব না। सब लोग शिव। হ্যাঁ না আচ্ছা আবার কি আচ্ছা। বললেন और क्या बोले, শিবের নামের সঙ্গে ভগবত নামের বা কৃষ্ণ নামের সঙ্গে সমত্ব বুদ্ধি করা হচ্ছে অপরাধ। कृष्ण नाम को और शिव नाम को एक समान नहीं समझना चाहिए। প্রথম নাম অপরাধ রে কি 10 বলুন प्रकार তো? के नामापराध बताए गए हैं। प्रथम नामापराध क्या है, साधु निंदा, হচ্ছে শতাং। सताम নিন্দা निंदा। কাকে বলে? না, যে বস্তু সত্য নয় जो वस्तु सत्य नहीं है, आरोप लगाना उसे कहा गया है निंदा। এগুলো আমার ভক্তিমোহন ঠাকুর বলেছেন। इसलिए हमारे भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं, চুরি করে নাই एक व्यक्ति ने चोरी नहीं किया और आप उसको चोर बोल रहे हैं, তাহলে এটা কি হলো? तो क्या हुआ, निंदा हो गया। আর একটা রাতি চুরি করেছে एक व्यक्ति ने चोरी किया, কি বললেন? চোর বললেন। उसको चोर बोले। চোরকে চোর বলা चोर के चोर बोलो, निंदा है कि नहीं है? निंदा नहीं है তুমি চুরি করে তো চোর বলবে না। भाई। किसी ने चोरी किया उसको चोर बोलेंगे, साधु बोलेंगे। তাই না? রাবণ কি করেছে? চুরি করেছে। रावण ने क्या किया, क्या चोरी किया, देवी सीता को चोरी किया। রাবণ চোর কি নয়? रावण चोर है कि नहीं? হ্যাঁ? রাবণ চোর। रावण चोर है। চোর বললে আমাদের কি হবে বলুন? रावण को चोर बोलने से निंदा होगी क्या? नहीं, निंदा होगी नहीं। কৃষ্ণ কি করেছে? মাখন চুরি कृष्ण করেছে। क्या किए, माखन चोरी किए। কৃষ্ণকে কি বলা হলো? कृष्ण को क्या बोला गया, माखन चोर। হ্যাঁ? যে প্রসিদ্ধ तम नवनीत चोरम दुपांगनानाम हृदय से चोरम অনেক कान्मित पाप दोषम चोराग्रगण्यम सम नमामि। কৃষ্ণকে কি বলা হলো? कृष्ण को क्या बोला गया, চোর বলা হলো। कृष्ण को কি चोर बोला गया। করেছে? क्या चोरी कर रहे हैं, हृदय। श्रीमती राधिका माखन चोरी किया और क्या चोरी, श्रीमती राधिका के हृदय कुछ। আচ্ছা তার মানে মেনে নিলাম। আর কি চুরি করেছে বলুন? এই ছোট বলছে नवनीत चोरम, গোপাঙ্গনাঞ্চ দুকুড়ো চোরম গোপীগণের কাপড় চুরি করেছে রে বাবা। गोपियों के कपड़े को भी चोरी कर लिए आप लोग। হ্যাঁ? বসন্ত চোর। बसंत चोरा। কাপড়ের মধ্যে वस्त्र और कपड़े में क्या फर्क है? बस कपड़ा चोरी। नवनीत चोरम चोरा गोपांगना नाम नकुल चोरम, यानी गोपियों के वस्त्र को चोरी किया। আবার দুই কুল হয়েছে তো কি কুল মাত্র অনেক জন্মার্জিত পাপ अनेक जन्मार्जित पाप चोरम, अनेक जन्म के पाप को भी चोरी कर लिया। एक बार की गोविंद शरणागत एक बार कोई गोविंद को शरणागत हो जाए, गोविंद क्या करेंगे, समस्त पाप को चोरी कर लेते हैं। গোবিন্দের নাম নিলে সমস্ত পাপ নষ্ট হয়ে যাবে। गोविंद का नाम लेने से समस्त पाप नष्ट हो जाते চিত্তং हैं। नीत चोरम गोपांगनानाम दुकूल चोरम অনেক জন্মার্জিত जित पाप चोरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। হ্যাঁ আমাদের বৈষ্ণব করতো हमारे वैष्णव और बड़े सुंदर रूप से व्याख्या करते हैं। कृष्ण ने क्या चोरी किया, मक्खन चोरी किया। হ্যাঁ মাখন माखन, माँ मतलब नहीं, কাম কৃষ্ণ माखन, माखन चोरी किया। কাম চুরি করে নাই কি চুরি করেছেন প্রেম कृष्ण क्या चोरी कर रहे हैं वास्तव में, কি চুরি করেছেন गोपियों का क्या चोरी कर रहे हैं, गोपियों के प्रेम को चोरी कर रहे हैं। দেখুন কত সুন্দর লেখা देखो कितने सुंदर रूप से व्याख्या हुआ। মাখন माखन, মা মানে নট माँ माने नहीं, खन माने काम। কাম কি চুরি চুরি করে নাই वो काम को चोरी नहीं किया, उन्होंने प्रेम को चोरी कर लिया। কাম কাকে বলে আত্মেন্দ্র বিধি বাঞ্ছা তারে বলি কাম কৃষ্ণেন্দ্র বিধি বাঞ্ছা ধরে প্রেমনা তারে কৃষ্ণ আমাদের কি চুরি করলেন तो कृष्ण ने क्या चोरी किया, প্রেম प्रेम चोरी कर लिया। गोपियों के हृदय में जो प्रेम है उस प्रेम को चोरी कर लिया श्री कृष्ण ने। কি চুরি করেছেন মা याद रखना क्या चोरी किया, माखन। মা মানে নট माँ माने, মা মানে নেই माँ मतलब नहीं, হ্যাঁ
खम शब्द का अर्थ है काम। श्री कृष्ण काम को चोरी नहीं कर रहे हैं, प्रेम को चोरी कर रहे हैं। गोपियों का काम यानी प्रेम। अनेक सुंदर सुंदर व्याख्या है। काम्या बन जाएंगे ना, जो काम वासना इच्छा है सबको चोरी कर लेते हैं श्री कृष्ण। हम लोग निंदा शब्द की व्याख्या कर रहे थे। निंदा जो वस्तु नहीं है उसको आरोपित किया जाए उसे कहते हैं निंदा। साधु को साधु बोले निंदा नहीं है, साधु को असाधु बोलो ये है निंदा। चोर को चोर बोलना निंदा नहीं है, लेकिन यदि किसी ने चोरी नहीं किया उसके ऊपर आरोप लगा दिया तो ये निंदा हो गया। आपने चोरी नहीं किया, आपने वो कार्य नहीं किया, लेकिन आपके ऊपर आरोप लगा दिया तो ये हो गया निंदा। कह रहे हैं कई लोग बोलते हैं आपने क्यों कथा बोला। जिसने चोरी किया उसको चोर कहा गया। चोर को चोर बोलने से निंदा होगा नहीं। कौन क्या करता है क्या नहीं करता है कौन बोले, इसलिए हरि नाम करो। ना निंदती ना प्रशंसती। निंदा मत करो, प्रशंसा मत करो, क्या जरूरत है समय नष्ट करने की। चोर चोरी कर रहा है, तुम चोरी कर रहे हो। चोर बोलेगा हमारा क्या जाए। शास्त्र में बोला गया है, श्रीमद् भागवतम में बोला गया है, ना निंदती ना प्रशंसती। निंदा करने से कोई लाभ नहीं होगा, प्रशंसा करने से कोई लाभ नहीं होगा। प्रशंसा करने से क्या होगा बताओ। प्रशंसा करेंगे तो कुछ पैसा वैसा मिल जाएगा जगत का। वाह वाह। एक कथा सुनाता हूँ। एक समय अकबर बादशाह का सभा हुआ था। उनके मंत्री बीरबल, अकबर बीरबल की कथा है। एक समय अकबर ने बोला बीरबल देखो ना ये बैगन खूब सुंदर। बैगन खूब सुंदर है। बैगन को बनाओ, भरता बनाओ, खाओ, बहुत अच्छा लगेगा। बैगन का कुछ भी बनाओ बहुत अच्छा लगता है। लाफड़ा बनाओ, लाफड़ा सब्जी, बैगन का रस सब्जी बनाओ, बैगन को भाजा करो, चकाचक समझते हैं। बोलता हाँ जी। बैगन। अकबर बादशाह को बोले बीरबल बेगुन, उसमें कोई गुड़ ही नहीं है। बैगन ज्यादा खाने से क्या होगा, खुजली होता है, एलर्जी होता है। डॉक्टर ने बोला बैगन खुजली हो अगर तो बैगन मत खाना। बोले हाँ बैगन बेकार है, कोई गुड़ ही नहीं है। चतुर्मास में बैगन में क्या हो जाता है, ज़्यादा वो हो जाते हैं, बीज बड़ा हो जाता है, दाना हो जाता है। आप सब लोग तो सब जानते हैं, मैं तो जानता नहीं। बेगुन। तो अकबर बादशाह ने बोला हम बैगन के गुड़ का किया, तो बोले हाँ जी। हमने बोला बैगन बेकार, क्यों, तात्पर्य क्या है। तो बीरबल ने कहा हम बैगन का थोड़ी दास, हम तो आपके दास हैं। बैगन को अच्छा आपने बोला था, हमने बोला अच्छा है, आपको खुशी हो रही है। आपने कहा बैगन बेकार, तो हमने बोला हाँ बैगन बेकार है। यदि मैं बोलता आपको बैगन बेकार है, आप उसकी गुड़ की महिमा कर रहे हैं, उसका मैं अपोजिट बोलूँ तो आपको गुस्सा आ जाएगा। तो इसलिए जो आप बोल रहे हैं मैं उसी का अनुमोदन कर रहा हूँ।
हाँ में हाँ करो, ना में ना करो। बेगुन का हम दास तो है नहीं, हम तो आपके दास हैं। बीरबल बादशाह अकबर से कह रहे हैं, আপনার যাতে আপনি সুখ হন। ऐसा करने से आपको सुख हो रहा है। কি কথা বললাম? क्या कथा बोला हमने? निंदा। নিন্দা কাকে বলে? निंदा किसको बोलते हैं? আমাদের বিজয় প্রথম বলা হচ্ছে শতাং নিন্দা। खत्म बोला गया सताम निंदा। साधु की निंदा नहीं करनी चाहिए। না সাধুদের দোষই নেই। साधु में दोष ही नहीं है वास्तव में, दृष्टि स्वभाव में दोष दिखलाई देता है। আমাদের রূপশ্রী हमारे रूप गोस्वामी पाद बोल रहे हैं उपदेशामृत में, जो शुद्ध भक्त हैं তাদের দোষ থাকে না। उसके दोष नहीं होते। যদি দোষ বলে তোমার মনে হয় यदि दोष तुम्हारे मन में, যেমন लेकिन उसके अंदर दोष नहीं। उदाहरण दे रहे हैं, जिस तरह से गंगा जल पवित्र है कि नहीं है, पवित्र है। সামান্য যে জল यदि सामान्य जल लिया जाए, সেটা কখনো পবিত্র হতে পারে অপবিত্র হতে পারে। कहीं पवित्र है कहीं पवित्र है। জল কত कोई ड्रेन में जा रहा है, नाले में, আমি আবার বলি, চোখের জল, নাকের জল, কানের জল, नाक का जल, হ্যাঁ, কত জল कान का जल, डाब अर्थात नारियल का जल, नाक का जल, খাবেন চেষ্টা পেয়েছে জল খাবেন। কি জল আনবো বাবা? कौन सा जल बाबा? হ্যাঁ কুয়ার জল রয়েছে, कुआं का जल, হ্যাঁ কূপের জল, আর নলের জল, নদীর नल জল, जल, नदी जल, ঘামে বেশে জল, ঘাম হয় না, धूप होता है तो पसीना निकलता है চোখের जल। জল, নাকের জল, হ্যাঁ অবাক জল कैसे ঠিক হচ্ছে? হ্যাঁ হ্যাঁ সব জানে কি বলা। सब लोग जानते हैं आप। এখন বলছেন কি বললাম? यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? जल। হ্যাঁ, কত রকমের জল আছে? कितनी तरह का जल है। হ্যাঁ আর কি জন্য বললাম বলুন তো? कितना जल बोला हमने? बोलो तो भूल गए। নিন্দা। नहीं, क्या बोला हमने? निंदा। নিন্দাটা তো হয় শেখা। হ্যাঁ, যে সাধুর মধ্যে নিন্দা নেই। হ্যাঁ, साधु বললাম, की গঙ্গা निंदा জল। नहीं करनी चाहिए। गंगा जल सदा सर्वदा पवित्र है। অন্য জলের মধ্যে জানেন अन्य जल শাস্ত্রে से বলা হয়েছে, আপনাদের शास्त्रों বলি, में बोला गया है, যে অন্য কোনো জলের উপর যে বুদবুদ अन्य গুলো कोई উঠে, जल বলে, में ফেনা। बुदबुदा उठे। এরকম করে। হ্যাঁ, সামান্য জলের যখন আমরা ট্যাপ সামান্য থেকে জল। নিচ্ছেন, ওই যদি জলের উপরে যদি কি উঠে যায়, কি বলে? রাধা বা कि गज्जा निकलता है, फेना उठ जाए ওই उसमें, জলটা ভগবানের সেবাতে। वो भगवान की सेवा में नहीं लगता, उसे अपवित्र माना गया है। হ্যাঁ, আজ এটা কি অপবিত্র মনে? হ্যাঁ, আবার বলা হয়েছে কি যদি और নাখুন বা আঙুল क्या बोला যদি गया है? यदि লেগে যায় তাহলে সেই नाखून জলটা ভগবানের लग সেবাতে जाए तो वो जल भगवान की सेवा में नहीं लगेगा, লেগে যায়, अपराध हो जाता है। কিন্তু গঙ্গা জলে किंतु যদি यदि বুদবুদ गंगा जल में बुदबुद उठे, फेन उठे, উঠে, वो पवित्र है। এই, এই জন্য শাস্ত্র নেই। ये शास्त्रों में विधान है। যারা বৈষ্ণব রয়েছেন, इसलिए जहाँ पर वैष्णव हैं, वैष्णव में कोई दोष আমার देखते চোখের नहीं। মধ্যে আমি দোষ দেখছি। हमारे चक्षु से हमें दोष दिखलाई दे रहा है, उनका दोष नहीं है, गुण है। এই জন্য বলছেন দৃষ্টি স্বভাব, इसलिए बोलते हैं दृष्टि स्वभाव में दोष होता है। তাকে সাধারণ প্রাকৃত বৈষ্ণবকে সাধারণ প্রাকৃত বুদ্ধি করবে না, যারা साधारण प्राकृत वैष्णव को साधारण बुद्धि मत करना, क्योंकि वो नाम परायण वैष्णव हैं। হরিদাস ঠাকুরকে মুসলমান বললে हरिदास ठाकुर को मुसलमान बोलने में अपराध होगा। क्यों? হরিদাস ঠাকুর বৈষ্ণব, वास्तव में हरिदास ठाकुर वैष्णव है, उसे नामा आचार्य हरिदास ठाकुर, হ্যাঁ, वो वास्तव में मुस्लिम कुल में आए थे। হরিদাস ঠাকুর জবান বলতে নাই, हरिदास ठाकुर को एवं नहीं बोलना चाहिए, इसमें जवान हरिदास ठाकुर बना है। एवं हरिदास ठाकुर बोला गया है, लेकिन বৈষ্ণব, वो तो वैष्णव हैं। যখন আপনি গ্রুপ থেকে যখন আপনি দীক্ষা जिन्होंने अब गुरु ग्रहण कर लिया और दीक्षा मंत्र आदि गुरु से ग्रहण कर लिया, গোত্রটা পাল্টে গেল, तो उसका गोत्र पलट गया। क्या गोत्र होता है बताओ? अच्युत गोत्र। আর যখন আপনি गुरु থেকে মন্ত্র और जब तक आपने गुरुदेव से मंत्र नहीं लिया, तब तक आपका गोत्र सांडिल्य गोत्र, कश्यप गोत्र, अनेक तरह तरह के गोत्र हैं। কিন্তু যখন আপনি গুরু लेकिन जब आपने गुरु ग्रहण कर लिया, गुरु धारण कर लिया হলো অচ্যুত গোত্র, ভগবান और दीक्षा मंत्र ले लिया, तो आपको कहा गया अच्युत गोत्र। जो हरि का भजे सो हरि का होई। হরি ভজন করছে, जो हरि भजन कर रहा है, नाम ग्रहण कर रहा है, नाम ग्रहण कर लिया है, वो हरि का ही है। হয়ে গেল तो उनका गोत्र हो गया अच्युत गोत्र। अच्युत गोत्र भगवान श्री हरि। বৈষ্ণবের কখনো
इसलिए आश्रमेर कथा जिज्ञासा वैष्णव के कभी पूर्व आश्रम की है कथा की चर्चा नहीं करते। अपराध ये सब अपराध होता है, है शास्त्रों में बतलाया गया है। এইজন্য বলছেন इसलिए बोला गया है निंदा सताम निंदा कि शताम निंदा, साधु की निंदा नहीं करनी चाहिए। যেমন গঙ্গা জল সদা সর্বদা পবিত্র गंगा जल सदा सर्वदा पवित्र है, उसमें फेन निकल रहा है तो भी पवित्र है, नहीं निकल रहा है तो भी पवित्र है। गंगा जल जिस तरह से सदा सर्वदा पवित्र है, उसी तरह से वैष्णव सदा सर्वदा पवित्र हैं। অপবিত্র মানে ঠিক তদ্রূপ বৈষ্ণবের কখনো যদি ঠিক उसी रूप में বাইরের দিক থেকে কোনো वस्तु देखा जाए वैष्णव का कोई बाहरी वस्तु दिखलाई दे रही है तो उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। कोई वैष्णव है, शरीर रूप से कोई पतला है, पतला लोग समझते हैं बहुत रोगा यानी दुबला। कोई साधु बड़ा मोटा है, दुबला पतला मोटा साधु, ये बोलने से अपराध होता है। अथवा कोई साधा टेढ़ो मेढ़ो चल रहा है जिस तरह से अष्टवक्र ऋषि चल रहे थे, ये वास्तव में अपराध होता है। इसलिए हमारे दृष्टि में ही दोष है। साधु क्रोध प्रकाश कर रहे हैं तो हमारा मंगल ही होगा। जिस तरह से नारद ऋषि ने मणिग्रीव और नल कुबेर के ऊपर क्रोध किया लेकिन उनका कल्याण ही हुआ। नारद ऋषि का क्रोध गुण है कि दोष है? बताइए, गुण है, दोष नहीं है। यदि शुद्ध साधु हमारे ऊपर क्रोध प्रकाशित करे तो वो क्या है? वास्तव में गुण है। क्यों? क्या करेंगे? यदि दोष कर रहे हैं तो हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं वैष्णव लोग। यदि नारद ऋषि ने नल कुबेर और मणिग्रीव के ऊपर क्रोध प्रकाशित नहीं किया होता, अभिश्राप नहीं देते, तो यमला अर्जुन वृक्ष के रूप में नहीं आते और गोविंद उनका उद्धार नहीं करते। बहुत अधिक समय लगता, उद्धार होता कि नहीं होता पता नहीं। लेकिन नारद ऋषि ने उन दोनों को श्राप दे दिया तो उनको क्या? वृक्ष जन्म देने का श्राप दे दिया। लेकिन वृक्ष जन्म हुआ कहाँ पर हुआ? वृंदावन में। वो भी वृंदावन में कहाँ? गोकुल में। नंद गोकुल, यहाँ वहाँ नहीं, नंद महाराज के भवन में, आंगन में, घर। वैसी भगवान देवऋषि नारद के वचन को रखने के लिए दाम बंधन की लीला की और नल कुबेर और मणिग्रीव का उद्धार कर दिया। उन्होंने अपने उन्होंने उनके स्वरूप के अनुसार गोलोक वृंदावन में भेज दिया। क्या स्वरूप है उनका? स्निग्ध कंठ और मधुकंठ के रूप में, यानी स्निग्ध कंठ और मधुकंठ स्वरूप प्राप्त कर लिया। सदा सर्वदा जो नंद महाराज के आंगन में कृष्ण की गुण कथा का कीर्तन कर रहे हैं। इसलिए साधु का जो क्रोध है वो वास्तव में कृपा ही है। जिस तरह से देवऋषि नारद ने नल कुबेर और मणिग्रीव के ऊपर किया, यदि साधु ने क्रोध किया तो ये समझ लेना कि वास्तव में ये हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं। अल्प मेधा मतलब जो अल्प बुद्धि वाले हैं वो बोलते हैं कि ये तो ठीक गुरु नहीं है, ये तो ठीक साधु नहीं है। जो गुरु हमारी प्रशंसा करता है वही तो ठीक है। जो गुरु हमें थप्पड़ मारते हैं, हमारी पिटाई करते हैं, कमियां दूर करना चाहते हैं, वो ठीक नहीं है, ऐसा लोग कहते हैं। इसलिए हमारे भक्ति सिद्धांत श्रुति ठाकुर ने बोला है कि एक होते हैं फू 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 करने वाले डॉक्टर हैं, एक डॉक्टर होते हैं जो ऑपरेशन करते हैं। अगर किसी को फोड़ा हो गया है तो एक डॉक्टर है केवल फू 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 कर रहा है और एक डॉक्टर उसको ऑपरेशन करके सही कर रहा है। तो कौन सा डॉक्टर सही है?
করতে বাস আর ওই वही करते करते ভিতরের মধ্যে ক্যান্সার হয়ে বাস মরে গেল। कोई फू फू करने वाला डॉक्टर होगा तो कैंसर होगा इत्यादि होगा, लेकिन अच्छा डॉक्टर क्या करेगा, ऑपरेशन करेगा, ऑपरेशन करके उसे निकाल देगा। কেটে দিয়ে ওর মধ্যে যা কিছু उसके फोड़ा में कुछ है तो उसे निकाल देंगे। ওষুধ লাগিয়ে দিয়ে স্টিচ করে আপনি 5-7 দিনের মধ্যে ঠিক হয়ে গেলেন। তো কোন तो वास्तव में कौन डॉक्टर अच्छा है, जिसने ऑपरेशन करके ठीक कर दिया वो अच्छा है, कि जो डॉक्टर फू 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 कर रहा है वो अच्छा है। যখন डॉक्टर যখন আপনি ফোড়াটাকে যখন डॉक्टर ने কাটে, आपने রক্ত जो फोड़ा को काटेगा उससे कष्ट होगा ना, 3-4 জন ফোড়াটাকে ধরে পড়ে আর কষ্ট। 3-4 दिन ऐसे रहना पड़ेगा, तो और कष्ट हो रहा है ডাক্তারকেও গালি দেওয়া শুরু तो उस डॉक्टर को कोई गाली दे। দিন পরে যখন 5 दिन के बाद 6 दिन के बाद जब सब ठीक हो गया तब डॉक्टर को, हाँ हाँ आपने तो बड़ा अच्छा किया, आपने तो बड़ी कृपा करी है। এই জন্য সাধু इसलिए साधुगण यदि शुद्ध भक्त हैं, हमारे ऊपर क्रोध प्रकाशित कर रहे हैं, तो समझ लो हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं। এটি জানতে হবে। আর যে সাধু इस बात को আপনার समझ প্রশংসা लीजिए, করছে, তার जो মানে साधु आपकी प्रशंसा कर रहे हैं उनके मन में क्या है कि वो आपसे पैसा लेना चाहते हैं, माल लेना चाहते हैं। আপনার প্রশংসা করে আপনার জেব খালি করার চেষ্টা করছে। যে বুঝেন কি বুঝেন না? আরে পকেট আপনার প্রশংসা করলে বাহ, হ্যাঁ ये सा जेब বলে मतलब मेरा पॉकेट। आपको ये सेवा करते हैं। পকেট খালি করে দিয়ে চলবে। হ্যাঁ ये साधु দ্বারা হবে না। সাধু সর্বমঙ্গল। হ্যাঁ হ্যাঁ वास्तव में साधु कौन से अच्छे हैं, হ্যাঁ এই জন্য নামাপরাধের প্রথম রয়েছে इसलिए नामापराध में सबसे पहले है सताम জীবনে निंदा। নিন্দা করবেন না। साधु আর की कभी निंदा দ্বিতীয় करना नहीं। অপরাধ রয়েছে শিব নামের সঙ্গে কৃষ্ণ दूसरा নামের अपराध সমস্ত शिव বুদ্ধি করা। এটা হচ্ছে को कृष्ण नाम के समान नहीं समझना चाहिए, ऐसा তৃতীয় समझेंगे নাম तो অপরাধ अपराध। কি রয়েছে? डालो बंगला গুরু অবজ্ঞা, মন্ত্র গুরু, क्या है, गुरु अवज्ञा। ভিক্ষা গুরুর প্রতি অসুয়া ভাব প্রকাশ করা, এটা অপরাধ। হ্যাঁ বা অথবা গুরুদেবকে সামান্য अथवा गुरुदेव को বুদ্ধি सामान्य জ্ঞান করা। व्यक्ति समझना, सामान्य बुद्धि গুরুদেবকে करना। সামান্য মর্তবুদ্ধি, আমিও খাই গুরুদেবও খায়, তার পার্থক্য কি আছে? আমিও শুয়ে যাই গুরুদেবও শুয়ে যায়। গুরুদেব মনুষ্য বুদ্ধি। गुरुदेव में मनुष्य बुद्धि जो करता है कभी करना नहीं चाहिए। হ্যাঁ হ্যাঁ ওই যে না, আশ্রয় করিয়া বন্ধ শ্রী গুরু চরণ, যা হইতে মিলে ভাই, হ্যাঁ কৃষ্ণ প্রেম ধন। এই যে ওই মধ্যে রয়েছেন গুরুকে কবু না করিবে মনুষ্য জ্ঞান। गुरु में गुरु कभी के मनुष्य कखनो ज्ञान नहीं करना सामान्य चाहिए। मनुष्य आचार्य गुरुदेव को मां कभी सामान्य विजया मनुष्य नाम नहीं अन्य समझना कहिचित, चाहिए। नाम अर्थ उद्दासुरे सर्वदेवमय गुरु। संत भगवान उद्धव को बोलছে आचार्य देव गुरुदेव के सामान्य मनुष्य। भगवान उद्धव को बोल रहे हैं, आचार्य मां विजया नाम अवमान्य आचार्य माम ताकि सामान्य विजानात् मनुष्य मामन्ये कहिचित् है वर्तमान में नमृत कखनो विद्यास्वेत सर्वदेवमय गुरु। सर्वदेवमय गुरु आचार्य मां है এগুলো সিদ্ধান্ত জানতে হবে। হ্যাঁ আর গুরুর প্রতি কখনো উচ্চ বাচ্য বলতে নাই। কি বললাম? উচ্চ বাচ্য গুরু একটা কথা বলছে, আপনি উল্টা করে বলুন। रोटेट नहीं हो रहा না रोटेट। এই জন্য শাস্ত্রের মধ্যে কি বলা হয়েছে? इसलिए शास्त्रों में गुरु क्या बोला आज्ञा, गया है कि गुरु जब आज्ञा, विज्ञानिया। गुरुदेव যা ने বললেন, आज्ञा दे दिया तो वहाँ पर विचार करने की आवश्यकता আমাকে नहीं, কি করতে अविचार হবে? नहीं है। সেটা निर्विचारे बिना किसी विचार के, बिना विचार के उसका पालन करना चाहिए। गुरु ने जो आज्ञा दे दिया, गुरुदेव ने जो हमको बोला तो हम उस पर विचार करेंगे। विचार करके चित्ते पे भी चमत्कार। शास्त्रों की भाषा बड़ी कठिन है। गुरुदेव ने बोला তৃষ্ণা পেয়েছে, কি বলে তৃষ্ণা পেয়েছে, জল নিয়ে আসো। जल ले आओ। হ্যাঁ, কি জল নিয়ে আসবেন? तुम बोले के जल लेके आएंगे? नाक का जल, कान का जल, হ্যাঁ কুয়োর জল, कुएं का जल, पोखर का जल, ঠান্ডা জল, গরম জল। ठंडा जल, गरम जल। আরে আচ্ছা ঠিক আছে, পানি জল। কি জল গুড় খাবেন? गरम जल, ठंडा গরম जल, জল খাবেন কি ठंडा जल। ঠান্ডা জল খাবেন? আমার সেই কথা বলি। আমি কখনো ঠান্ডা জল খাই না। তাহলে আমাকে हम कभी ठंडा जल पीते नहीं। আমার জন্য একটু জল নিয়ে আসো। যদি সে যদি ঠান্ডা জল নিয়ে আসে আমি খাবো না, তাহলে সেখানে আমার সেবা হলো না। সেটি কথা। হ্যাঁ তাহলে আমাকে জানতে হবে যে এই সাধু কি জল পান করে।
না বরফ গলা জল নেই, ঠান্ডা তো প্রচুর পড়েছে, এই গরম প্রচুর পড়েছে আর বরফ গলা জল এসে, হ্যাঁ মহারাজ এই ঠান্ডাইটা খান, ঠান্ডাই বিক্রি হয় না বাজারে, হ্যাঁ আমি সেটা খাবো নাকি? कुछ लोग ठंडा देते हैं। এই জন্য ঠান্ডা খাবেন। সেবাটা সেখানে সুষ্ঠুভাবে হয়, ঠিকভাবে হয়, সেব্য বস্তুর ভাবটা যায়। হ্যাঁ যদি আমরা সেব্য বস্তু যিনি যার সেবা করব তার যদি হৃদয়গত यदि हमारा ভাবটা আমরা सेव्य না জানতে वस्तु পারি তাহলে সেখানে ঠিক ঠিক সেবাটা হয় না। হ্যাঁ? हम उसके भाव को नहीं समझेंगे तो ठीक ठीक उसकी उनकी सेवा होगी नहीं। আচ্ছা সর্বশ্রেষ্ঠ अच्छा সেবক सर्वश्रेष्ठ কে? सेवक कौन है? স্বয়ং শ্রীমতী রাধিকা সেবক। स्वयं श्रीमती राधिका सर्वश्रेष्ठ सेवक है। রাধিকা কেবল অকেলে শ্রীমতী রাধিকা কেবল তিনি কৃষ্ণের श्रीमती राधिका केवल कृष्ण के हृदय के भाव को जानती हैं, इसलिए चैतन्य चरितामृत के मध्य में बोला गया है, কি বলা হয়েছে? রাধিকা নাম क्या बोला পুরাণে गया বলে। है? राधिका नाम पुराणे बखाने, বলা হয় যে না? দেবী সংযুক্তা রাধিকা देवी कृष्णमयी राधिका पर देवता। কৃষ্ণের শ্রীমতী রাধিকার নামটা তাৎপর্য কি? श्रीमती राधिका के नाम का तात्पर्य क्या है? একমাত্র শ্রীমতী রাধিকা एकमात्र श्रीमती राधिका বিগত ভাব জানেন। कृष्ण के हित की भाव जानते हैं। একমাত্র শ্রীমতী রাধিকা एकमात्र श्रीमती राधिका সর্বতরূপে कृष्ण को संपूर्ण रूप से सेवा करती हैं। হ্যাঁ শেষ করে দিচ্ছি। এই জন্য বলছে রাধিকা নাম পুরাণে বাখান কৃষ্ণ বাঞ্ছা। इसलिए बोलते हैं राधिका नाम कृष्ण वांछा पूर्ति करे आराधने, राधिका नाम पुराणे बखाने। কৃষ্ণ বাঞ্ছা বাঞ্ছা মানে कृष्ण वांछा यानी कृष्ण की इच्छा की पूर्ति। এবারে কৃষ্ণ বাঞ্ছা পূর্তি করে আরাধনে কৃষ্ণ অতএব বাঞ্ছা রাধিকা নাম পূর্তি করে পুরাণে। আরাধনে। রাধিকার নাম ওর তাৎপর্য কেন? রাধিকার নাম রাধা রাধিকার রানী। নাম का রাধিকা तात्पर्य কেন क्या? হলো? না কৃষ্ণের সকল ইচ্ছা তিনি। হ্যাঁ শ্রীমতী রাধিকা জানেন श्रीमती যে राधिका আমি মান করলে কৃষ্ণের সুখ হবে। जानती हैं कि हमारे मान करने से कृष्ण को सुख होगा, इसलिए श्रीमती राधिका मान करती हैं। সেই গ্রন্থের নাম হলো কি গ্রন্থের নাম? श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने लिखा প্রেম है সম্পুট। प्रेम কি গ্রন্থ संपुट। বললাম? प्रेम संपुट এটা पढ़বেন। इस ग्रंथ को पढ़ना খুব ছোট গ্রন্থ আর খুব সুন্দর। मस्ट बी रीड दिस ग्रंथ। दिस ग्रंथ नेम इज प्रेम संपुट रिटन এই প্রেম बाय সম্পুট श्री विश्वनाथ গ্রন্থের चक्रवर्ती মধ্যে ठाकुर। স্বয়ং কৃষ্ণ দেখুন इस দেবাঙ্গনা प्रेम রূপে संपुट তিনি में स्वयं এসেছেন। श्री कृष्ण देवांगना रूप में সুন্দর বালিকা आए हुए ধারণ हैं। করে। सुंदर এই জন্য আমাদের बालिका का সামনে रूप धारण किया है। চিত্রপট করেছে না? হ্যাঁ, কৃষ্ণ সুন্দর শ্যামলী সখী श्यामा রূপে रानी दीदी ने এসেছে। एक चित्रपट হ্যাঁ, किया है। আর রাধিকা বিশ্বভানুনন্দিনী শ্রীমতী राधिका वृषभानंदनी श्रीमती এই राधिका প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছেন স্বয়ং यहाँ पर কৃষ্ণ स्वयं श्री कृष्ण রাধারানীকে জিজ্ঞাসা राधा করছে रानी से पूछ रहे हैं, হ্যাঁ, হে রাধে हे राधे তুমি তো কৃষ্ণকে অত্যন্ত প্রীতি করো, तुम तो कृष्ण को আবার अत्यंत কৃষ্ণের प्रीति প্রতি এত करती हो। রাগ করো কেন, ঝগড়া কেন করো? लेकिन मान कृष्ण क्या से तुम करो? झगड़ा क्यों करते हो? কৃষ্ণের কষ্ট হয় না? कृष्ण को कष्ट नहीं हैं? होता? তখন तब রাধারানী वहाँ पर श्रीमती राधिका ये कथा बोल रही যে है আমি জানি কৃষ্ণের कि हम जानते हैं সুখ কিসে হয়। कृष्ण को सुख যে আমি कैसे, মান করলে कि हैं? हमारे मान करने से কৃষ্ণের সুখ। कृष्ण को सुख এই है। জন্য কৃষ্ণের সুখের জন্য আমি মান করি। इसलिए कृष्ण के हैं? सुख के लिए हम मान और करते कारण हैं। श्रीमती राधिका कह रही हैं? हैं और कोई कारण नहीं। এগুলো মানের কারণ রয়েছে। কেন রাধারানী কৃষ্ণকে আবার কৃষ্ণ নিজেও বলেছেন তো, প্রিয়া यहाँ पर যদি कृष्ण মান स्वयं করি बोल रहे हैं। করে ভৎসন प्रिया বেদস্তুতি यदि मान करी হইতে करे মোর बस হরি মোর মন। वेद सुति স্বয়ং वे हरे কৃষ্ণ বলছেন मोर मन। আমার সর্বপ্রিয়তমা রাধারানী कृष्ण আমাকে हमारी যদি গালি দেয়, सर्वप्रियतम माँ श्रीमती राधा रानी यदि हमें गाली आनंद दे हो। रही हैं तो वो তাহলে गाली শ্রীমতী सुन রাধিকা करके भी জানেন मुझे কি परम জানেন? आनंद এই জন্য आता है। শ্রীমতী রাধিকা কৃষ্ণকে গালি দেয়। কি গালি দেয়? তুই চোর, লম্পট, স্টুপিড, ননসেন্স রাস্কাল। लंपट এতে কৃষ্ণের আনন্দ। स्टूपिड আমি नॉनसेंस। বলছি না, চৈতন্যতে বলা আছে কিনা? यदि হ্যাঁ? श्रीमती राधिका बोल रही हैं तो श्री कृष्ण को आनंद आ रहा है। इट इज ऑन अदर टेलीकास्ट। প্রিয়া যদি What other মান করি telecast করে চিত্রা দিদি? ভৎসন, বেদস্তুতি হইতে মোর হরি মোর। কত সুন্দর। হ্যাঁ, পর্যন্ত শ্রীমতী রাধিকা যখন মা এই দিব্য উন্মাদ দশায় রয়েছে, হ্যাঁ, তখন স্বয়ং কৃষ্ণ ভ্রমরের রূপ ধারণ করে स्वयं श्री कृष्ण ने भ्रमर रूप धारण कर लिया और राधा रानी के चरणों কৃষ্ণের में आ পুত गए। মনে করে, হ্যাঁ, और राधा रानी उन्हें कृष्ण का दूत মনে দিল। समझ रहे হ্যাঁ, हैं। করবেন খুব আনন্দ হবে। হ্যাঁ, What Bangla? সে কেন Bangla is going on. কৃষ্ণদূত মনে করছেন কৃষ্ণের Someone দূত asking about messenger। Bangla Katha. Yeah, Bangla is going on. হ্যাঁ, উদ্ধব ওইটা দর্শন করছেন।
উদ্যোগটা নিজের উপর লাগাচ্ছেন, কিন্তু সঙ্গ দেখুন কি শ্লোক আছে, মধুপ কিতব বন্ধু মা বিশ্রাঙ্গী, ওই ভ্রমরটা উড়তে উড়তে वो भ्रमर उड़ते उड़ते श्रीमती राधिका के चरण को कमल मान करके उसका मकरंद पान कर रहा है, उस पर बैठ गया। तो राधा रानी क्या समझ रही हैं कि ये कृष्ण का दूत है, मैसेजनर, আমাকে মান মানবার জন্য এসেছেন। हमें मनाने के लिए आया है। এই জন্য রাধা রানী কি করছেন? इसलिए श्रीमती राधा रानी क्या कर रही हैं তুমি আমাকে মান মানবার জন্য कि तुम हमारा मान मनाने के लिए आए हो, धूर्त कपट, মা বিশ্রাঙ্গী, তুমি আমার চরণকে तुम हमारे चरण को स्पर्श मत करो। বলে কেন? क्यों? ধূর্ত, तुम धूर्त हो, तुम कपटी हो, একটা ধূর্ত আর তোর মিত্র ধূর্ত। तुम भी धूर्त हो और तुम्हारा मित्र भी धूर्त है। धूर्त তার সঙ্গে হয় यानी लंपट है, कपटी है। সঙ্গে समभाव, চোরের সঙ্গে চোরের जिसका हमारा संभाव है उसी के साथ हमारी मित्रता होगी। जिस तरह से चोर की मित्रता चोर की होती है, साधु के संग में साधु की मित्रता होती है, হ্যাঁ सम व्यक्ति के साथ में ही मित्रता होती চোর है। চোরের সঙ্গে মিত্র করতে ভালো লাগবে, चोर का चोर के संग में मित्रता होगी, হ্যাঁ ঠক ঠকের সঙ্গে মিত্রতা করে, হ্যাঁ ওই আমরা সবাই ঠক, কৃষ্ণ ঠক না, कृष्ण ठग। তাহলে কৃষ্ণ ভজন কেন করছেন বলুন? कृष्ण भजन क्यों कर रहे हैं बताओ? বুঝতে পারবেন না হয়তো, কিন্তু এটা সত্য। समझ नहीं रहे हैं, लेकिन এই एक জন্য सत्य है। রাধারানী বলছেন इस समय श्रीमती राधिका बोल रही हैं, তবু হ্যাঁ ছাল কাবাট, হ্যাঁ যা তোর মিত্র হচ্ছে কৃষ্ণ, নাম নিচ্ছেন না, নাম কৃষ্ণের নাম নেওয়া হয়নি, এখানে নাম নিলে সেখানে হয়নি। नाम लेने से বন্ধু মা বিশ্রাম, যাও এখান থেকে, जाओ यहाँ से। হ্যাঁ श्रीमती राधिका बोल रही है শর্ট কাপাট उस भंवरे को, उस भ्रमर को कि तुम कपटी हो, तुम्हारा मित्र कपटी है, तुम हमारा मान मनाने के लिए आए हो, जाओ यहाँ से, चले जाओ। কত সুন্দর সুন্দর কথাগুলো রয়েছে। कितना सुंदर सुंदर कथा है। समय तो हो गया, लेकिन संक्षेप करके बोला। হ্যাঁ একটু জানবো আমি। কি জানবে? আপনি বললেন एक कथा मैं जानना चाहता हूँ। एक प्रभु जी प्रश्न कर रहे हैं कि विष्णु আর মহেশ্বর, महेश, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ, ब्रह्मा विष्णु महेश তিনজনের মধ্যে তো ভাগ তো আছে, तीनों ছোট বড় তো ভাগ भक्त তো हैं, छोटे। বড় দাও এই বললাম না, এতক্ষণ কি শুনলেন? ব্রহ্মা आपने क्या सुना अभी तो? ब्रह्मा, जीव कोटि ब्रह्मा, ईश्वर कोटि ब्रह्मा। কোটি ব্রহ্মা আর একটা হচ্ছে ঈশ্বর কোটি ব্রহ্মা। সেবন শিবের কথা বলা হয়েছে, একটা জীব কোটি শিব আর একটা ঈশ্বর কোটি। जीव कोटि शिव, ईश्वर कोटि शिव। ছোট বড়ের কথা তো छोटे বলে, बड़ की कथा तो ছোট বড় কেউ বলে। बाद की बात না, है। যেমন মুখ্যমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী जिस तरह से मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री হচ্ছে সর্বময় भलवाचे, कृष्ण जो है वो सर्व में सर्वश्रेष्ठ है। ব্রহ্মা लेकिन ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ভগবান নিজে विष्णु तो निज भगवान है, রূপে করে পালন, विष्णु रूपे करे पालन है, আর শিব রূপে তিনি शिव ধ্বংস रूपे করেন, करे ध्वंस, আর ব্রহ্মা রূপে তিনি और ब्रह्मा रूपे ब्रह्मा के रूप में सृष्टि करते हैं। হ্যাঁ? হ্যাঁ? তা ওইটা আবার করতে হয়, শত জনম পর তুমি হ্যাঁ। শিব প্রাপ্ত হবে। এই সত্যজনম ব্রহ্মা ब्रह्मा जी का पद प्राप्त होगा। বর্ণাশ্রম ধর্ম পালন করলে শিব তখন Now everybody doing the question, ব্রহ্মা পদ প্রাপ্ত করেন। আবার ব্রহ্মা but they are not doing the question one by one. সেই কার্য 100 বছর অতীত হলে পর তিনি শিবত্ব প্রাপ্ত করেন। ওইটা জীব যদি কাজ করে, হ্যাঁ। এই জন্য যেখানে বলা হয়েছে জীবই শিব, इसलिए बोला गया है कि जीव ही शिव। এবং তিনি শিবের কার্য করছেন, তখন ওখানে জীব তো ওই জীবটা শিব হয়ে গেল। जीव तत्व वो कार्य कर रहा है, কিন্তু প্রতিকল্পে এরূপ পাওয়া যায় না। किंतु प्रत्येक कल्प में इस ऐसा जीव प्राप्त नहीं होता, तो स्वयं श्री भगवान তখন স্বয়ং ভগবান, হ্যাঁ, এই শিবের পদে तो অধিষ্ঠিত शिव হয়ে के पद को ग्रहण कर लेते हैं और ध्वंस का कार्य करते हैं। उस शिव को बोला गया ईश्वर कोटि यानी सदा शिव। সদাশিব কাকে বলে আর হচ্ছে কৈলাস শিব কাকে বলে? सदा शिव और कैलाश, কৈলাস শিব হলেন জীবতত্ত্ব, कैलाश शिव बोला गया जीव জীবতত্ত্ব। तत्व। हमारे गुरुदेव ने एक ग्रंथ लिखा है, हिंदी में है, बांग्ला में है, मेरे ख्याल में
देखना उसमें हमारे गुरुदेव ने लिखा है शिव तत्व। হ্যাঁ, আপনি করুন, করতে হবে তো, হ্যাঁ, না করলে হবে না, प्रश्न হ্যাঁ, তাই না? নাহলে বুঝবে কি? বুঝতে পারছেন কি পারছেন না? বুঝতে পারছেন কি নাই? জীবটা শিব হচ্ছে, আর কোন শিবটা হচ্ছে ভগবান ভগবত তত্ত্ব। এই যে कौन शिव है? সদাশিব তত্ত্ব হচ্ছে বিষ্ণু তত্ত্ব, ভগবত তত্ত্ব। इसलिए सदा আর तत्व यानी বিষ্ণু भगवत হচ্ছে तत्व, সদা সর্বদা विष्णु सदा सर्वदा भगवत तत्व ही होते हैं। जीव कभी भी विष्णु हो नहीं सकता। এটা হচ্ছে সবসময় ঠিক আছে। বিষ্ণু হচ্ছে, इसलिए विष्णु विष्णु मतलब भगवत तत्व ही रहेंगे, ये ध्यान रखना। ব্রহ্মা হচ্ছে কখনো জীব ब्रह्मा তত্ত্ব, कभी আর कभी কখনো जीव হচ্ছে तत्व, कभी कभी ईश्वर को জীব কোটি तत्व। ব্রহ্মা, जीव कोटि ब्रह्मा, ईश्वर कोटि ब्रह्मा বলা হলো না? बोला गया है। ব্রহ্মাকে কি বলা আছে? বৈরাজ ব্রহ্মা। इसलिए एक আর ब्रह्मा को ব্রহ্মাকে কি बैराज বলা ব্রহ্মা বলা হয়? हिरण চতুর্মুখ ব্রহ্মা। এ বাবা, বললাম চতুর্মুখ তো আপনার তো চার মুখ বলে তো হবে না। কি ব্রহ্মা বললাম? হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা। दूसरा क्या बोला? हिरण्यगर्भ ब्रह्मा। যেই ব্রহ্মার পরে যার তাতে চারটা মুখ লাগিয়ে দিবি, তার কোনো चार मुख लगा दे तो कोई ब्रह्मा हो নামও जाए, লাগায় তার কোনো মানে নেই। ना भी लगाओ तो उसका कोई मतलब नहीं বলা है। হচ্ছে একটা হচ্ছে হিরণ্যগর্ভ इसलिए ব্রহ্মা, बोला गया है हिरण्यगर्भ ब्रह्मा, বৈরাজ ব্রহ্মা। एक बैराज ब्रह्मा। মনে রাখতে एक ध्यान रखना, बैराज ब्रह्मा, जीव कोटि, हिरण्यगर्भ ब्रह्मा, भगवत कोटि, ईश्वर कोटि। ঈশ্বর করে। হ্যাঁ, এগুলো মনে রাখতে। बुझते पड़े नहीं? শব্দগুলো মনে না রাখলে হবে না, ये शब्द मन में नहीं रखने से होगा नहीं। বুঝলেন? बुझलेन? ব্রহ্মা হচ্ছে। হ্যাঁ, বড় বৃন্দাবন। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। समय हो गया। হ্যাঁ, সিদ্ধার্থ কালকে বলা হবে। शिव तत्व कल बोलेंगे, ठीक है? কালকে শুরু আছে। टुमारो एवरीबडी कम ऑनलाइन बट वी हैव नो आइडिया अबाउट द टाइम। বিষ্ণুর মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে? হ্যাঁ? বিষ্ণু কি করে শ্রেষ্ঠ হলো কেন? ওটা পালন করে। আর এত যে ধ্বংস করে, ধ্বংস কাজটা সবচেয়ে বড় বললাম। विष्णु विष्णु क्या करते हैं? पालन करते हैं, শিব পদে তো ধ্বংস করে, তাতে কি হলো? আপনি বললেন তো ধ্বংস করে শীত তবে शिव जी সব करते। কল্পে হয় না রে বাবা, একটু ভুলে গেলেন আবার। কোনো কোনো কল্পে তো হয়। किसी किसी कल्प में तो हैं, যে জীব जीव मिल जाता है। শিবের পদ তিনি পান, সেটা হচ্ছে জীব তত্ত্ব, জীব কোটি। जीव कोटि शिव बोला गया है। আবার কোনো কল্পে যখন পাওয়া যায় না, और किसी कल्प में पाया जाता नहीं है तो भगवान शिव के पद को ग्रहण कर लेते हैं, जिसे बोलते हैं सदाशिव। কৈলাসী, কৈলাসী सदाशिव कैलाश शिव। ঈশ্বর তত্ত্ব, ভগবত তত্ত্ব। जीव तत्व, হ্যাঁ, ईश्वर तत्व, भगवत तत्व। ब्रह्मा के बारे में बोला गया, बैराज ब्रह्मा, जीव तत्व, हिरण्यगर्भ ब्रह्मा, ईश्वर कोटि, जीव कोटि, ईश्वर कोटि। इतना ही ध्यान रखें, মনে রাখ। ये अपने मन में रखना पड़ेगा। विष्णु स्वयं भगवत तत्व हैं, जीव कोटि विष्णु, ईश्वर कोटि विष्णु ऐसा नहीं है। वो तो सदा सर्वदा भगवत तत्व ही हैं। বিষ্ণু রূপে তিনি জীবের করেন পালন। विष्णु रूपे विष्णु रूप में जीवों का पालन करते हैं, বারবার इसलिए बार बार सुनना चाहिए। मस्ट बी लिसन मेनी टाइम्स। हिरण्यगर्भ ब्रह्मा और वैराग हिरण्यगर्भ ब्रह्मा, बैराज ब्रह्मा, ये सब मनन करिए, मन में याद रखिए। बहुत सुंदर सुंदर कथाएं हैं। चलो, वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। तै गो प्रबन्धे জিজ্ঞাসা করবো কি নাম আপনার? হ্যাঁ? थैंक यू সীমান্ত। কালকে আসবে, ভুলে যাবে না, জিজ্ঞাসা করবো। কয়টা ব্রহ্মার কথা বললাম?